Most welcome all the students. Now ready with your pen and paper and start the study. Now we are going to start the first chapter of class 12th sociology, chapter first, and that is Indian society. In this first chapter of class 12th sociology subject, Indian society, the chapter will not be evaluated in the board examination. It is information that is important for you, that this chapter, first chapter, Indian society, this will not be evaluated in the board examination. But before starting the next chapter, it is important that we have to be familiar with this chapter, and it is the base of the other chapters, that this next coming chapters. So we have to start this first chapter. In the last class, class 11th, we have read many topics and many chapters about the sociology and society. So I hope that most of the students will be very familiar with the subject sociology. It is a subject in which we study about the society, its culture, its lifestyle, and its structure, and especially the human behavior. And next topic that is also important, society. It is the group of the peoples who have the common interest and who have the mutual and common understanding to live together. तो सोशोलॉजी और सोसाइटी के ऊपर बहुत सारी बातचीत और बहुत सा एक्सप्लेनेशन क्लास 11th में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे बहुत से टॉपिक हैं जो 11th में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अगर वो फिर से आते हैं तो हम उनको रिपीट करेंगे, थोड़ा बहुत कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ वी हैव टू रिकॉल अगेन sociology as a subject. So it is very common that sociology is a subject that is not new for anyone. Means it is not a new subject for any stage and any age group of the human beings. Children of age of 5 or 6 years, and then up to 10 years, 15 years, 18 years of age, when he will become young, or the 25 years age of a mature people, and then the 45, 50 plus, or the 60s, any old people. Everybody feel that sociology is his personal and his familiar subject. It is not new for anyone. Either he's a child, or he's a young, or he or she is old. Everybody accept that sociology is his personal and his common subject. He is not unknown with this subject. So sociology is a subject in which no one starts from zero, we can say. It is a subject in which no one starts with zero. Everybody have some knowledge about the sociology and its facts and concepts. Either, I have told you, either he is a child, or he is young, or he is old. He has some knowledge about this subject and some concepts of this subject. So everybody already knows something about sociology and society, because we are living in the society. So some concept and some things, some knowledge we have already, that is existing in ourselves. Nobody is unknown with society.
Next, sociology is such an integral part of the process of growing up. When a child is taking birth in a family, and slowly he grown up, and when he become young, and after a long time period he become old, each and every stage he is always communicate and related with the society. So every day, each and every time, he is getting some knowledge and getting some relations with the society. So you can say society is always teaching a person this subject, sociology. Means sociology is a subject that is obviously or itself or naturally teaching to any person who is living in the society. सोशलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो प्रकृति के द्वारा या समाज के द्वारा स्वाभाविक तौर पर ही हर एक इंसान को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। एक नेचुरल प्रोसेस से हर व्यक्ति समाजशास्त्र को, सोशलॉजी को सीख रहा है। चाहते या ना चाहते हुए भी हर व्यक्ति समाज में रह रहा है, सामाजिक बन रहा है, वो समाजशास्त्र को सीख रहा है और उसे समाजशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, वो चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट्स में हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, स्टोन एज से, जहाँ से ह्यूमन बर्थ होता है, वानरों से मानव का विकास हुआ, उसके बाद फिर कहाँ कहाँ से वो आज कहाँ तक पहुँचा, डिविजन्स हैं हिस्ट्री के, तो वहाँ स्टार्टिंग करनी पड़ती है, फिर उस स्टेज पे पहुँचते हैं। मैथमेटिक्स में जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, काउंटिंग सीखता है बच्चा, फिर जाके मैथमेटिक्स की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो हर सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेज में एक स्टार्टिंग करनी पड़ती है, उसको स्टार्टअप चाहिए। लेकिन सोशलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरली और सोसाइटी के द्वारा, फैमिली के द्वारा हर एक समय, हर एक क्षण में सिखाया जा रहा है, बिना किसी के चाहे या ना चाहे। So this prior knowledge, this previous knowledge of sociology, sometimes it is helpful for the learners or the students of sociology and researchers of sociology, and sometimes it is also problematic. So the prior knowledge of familiarity with the society is both an advantage and a disadvantage for the sociology and also the sociologist or the learners। सोशलॉजी का या सोसाइटी का जो प्रायर नॉलेज हम लोगों के पास है, हम समाज में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर पहले से ही एक कॉन्सेप्ट, एक धारणा बनी रहती है। वो हमारे लिए एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, और ये सोशलॉजी को भी इफेक्ट करता है, सोशलॉजी पर भी असर डालता है। जब भी कोई सोशलॉजी पढ़ने चलता है तो वो सीना तान के पहले तो यही समझ लेता है कि अरे उससे तो बहुत कुछ इसमें पता होगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो यहाँ पर वो अपने प्रीवियस नॉलेज को, प्रायर नॉलेज को जोड़ रहा है और उसी को कॉन्सेप्ट मान करके डिफाइन करके बैठा हुआ है। इसका मतलब उसका माइंड बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने से मना कर देगा, बहुत सी नई चीज़ें वो सीखना जानना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट फिट है कि उसे तो ये पता है, इससे जो उसमें लिखा है, जो कोई बता रहा है, उससे ज़्यादा उसे पता है, उसे ऐसा भी लग सकता है। क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ने लिखने के टाइम पीरियड में या ऑब्ज़र्व करने के टाइम पीरियड में बाइस्ड हो जाते हैं। हम कभी कभी एकल मार्गी हो जाते हैं, या हम जैसा सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसको सही मान बैठते हैं, दूसरे को गलत मान लेते हैं। तो ये जो प्रायर नॉलेज है सोसाइटी का, रिसर्चर्स के लिए, लर्नर्स के लिए, या सोशलॉजी के लिए, ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। The advantage is that students are generally not afraid of sociology and this subject.
because they feel that it is not very hard subject to learn. सोशलॉजी या सोसाइटी का जो पूर्व ज्ञान है, वो एक उसका एक फ़ायदा ये है कि जब भी कोई लर्नर है, स्टूडेंट है, तो उसको सोशलॉजी सब्जेक्ट से डर नहीं लगता है। उसको पता होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से पता हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है। ये इसका एक एडवांटेज है। ये उस पर्सन को मोटिवेट कर देता है कि आपको बहुत कुछ पता है, यानी कि उसको पहले से थोड़ा सा ज्ञानी बना देता है। And the disadvantage is that the prior knowledge can be a problem. ये जो प्रायर नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, ये कभी कभी समस्यात्मक भी हो जाता है, समस्या बन जाता है लर्नर के लिए, सोशलॉजी के लिए। क्योंकि हम पहले से जो लर्न किए बैठे हैं, जो माइंड में कॉन्सेप्ट बनाए बैठे हुए हैं, उसके सामने अगर वो हमारे सामने रहेगा तो हम नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ सीख नहीं पाएंगे। ये बैरियर का काम करता है। द प्रायर नॉलेज ऑफ सोसाइटी एंड सोशलॉजी, दिस क्रिएट a barrier to learn the new thing and new concept of sociology. So before learning something new and something that is coming in front of any person or any sociologist, we have to firstly unlearn the previous knowledge or prior knowledge. हमें कुछ नया सीखने के लिए सबसे पहले अपने जो मन ने पहले से बनाया हुआ पूर्व धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको भूलना पड़ेगा। अगर हम उसको हटा नहीं सकते, उसको भूल नहीं सकते, तो नया सीखने के लिए फिर हम तैयार नहीं हो पाएंगे। हमारा माइंड, हमारा हार्ट जो होगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हमारे माइंड में पहले से बना हुआ है कि अरे ये चीज़ है, इसका तो मुझे पहले से नॉलेज है, अब इसमें क्या सीखना, इससे अच्छा तो मैं खुद जानता हूँ। तो सोशलॉजी में कुछ नया सीखने के लिए पहले आपको प्रायर नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को भूलना पड़ेगा। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ प्रायर नॉलेज। इट क्रिएट्स a barrier to learn new thing or new concepts. So at last it is clear that the previous knowledge or prior knowledge of sociology and society, it is incomplete knowledge. It is only a partial knowledge which we have seen in front of us and which have happened inside us. But there may be more and more which is invisible and which has not happened in front of us. So we have to also learn and think and discuss about that things and that processes, that matters, which are invisible and which we have not seen in our past. तो सोशलॉजी में आगे बढ़ने के लिए हमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सीखना पड़ेगा कि जो कुछ हमने पहले से सीख लिया है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, वो पार्शियल है, आंशिक है, उसमें संपूर्णता नहीं है, वो फुल नॉलेज नहीं है। अभी उसके बाद भी बहुत कुछ बाकी है जो हमने नहीं देखा या जो हमारे सामने नहीं हुआ है। उसको जानने के लिए, जो रियल नॉलेज है उसको गेन करने के लिए, हमें अपने प्रायर नॉलेज को थोड़ा समय के लिए अनलर्न करना होगा, उसे भूलना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में अडॉप्ट करके, माइंड में सेट करके, हम सोशलॉजी के इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को, जिसको बोलते हैं इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के आगे के पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि जो इंडियन सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, और उसको लेकर के हमारे माइंड में जो प्रीवियस थिंकिंग बनी हुई है इंडियन सोसाइटी की, और अभी उसमें जो बहुत कुछ सीखना बाकी है, उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, उनको बुक रीड करना है, और रीडिंग के साथ साथ आप जैसे पहले नोट्स फॉर्म करते थे उस तरीके से नोट्स भी फॉर्म करते रहना है। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको नोट करते जाइए। और मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं उसमें भी आपको अगर कोई बेस्ट लगते हैं तो उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में।
तो इस पार्ट फर्स्ट में आप इतना सीख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इंडियन सोसाइटी को लेकर के और इंडियन सोसाइटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।